Alaikum adab to all of you. Jammu and Kashmir Pensioners United Front, headed by me, welcome to all respected journalists, photojournalists, camera persons, belong to print and electronic media and social media for attending this press conference at a short notice. Jammu and Kashmir Ladakh Pensioners United Front is a non-political platform representing lakhs of pensioners and senior citizens across Jammu and Kashmir and Ladakh. Main focus of today's press conference is to support the nationwide call given by All India State Pensioners Federation on 23rd of June 2025, in which pensioners throughout India will submit memorandum to the Honorable Prime Minister of India through deputy commissioners, district collectors from all the districts of the entire country regarding the grave concern of the pensioners of the country. All the district presidents of Jammu and Kashmir Pensioners United Front are directed to support the program by submitting memorandum through concerned deputy commissioners. The grave concern of today's press conference is that Government of India is mulling to exclude crores of pensioners from the benefit of 8th pay commission. And from 8th pay commission, which has come to public domain from different media houses and reliable sources. The passing of finance bill in the parliament is cause of concern for crores of pensioners of throughout India. एक अहम मसला है जो हम सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट पर वो कम्यूटेशन लीव लेते हैं, वो सरकार उससे लोन देके वापस ले जाती है। जो सरकार ने इंस्टॉलमेंट फिक्स किए उनमें 10 साल और 8 महीने में वो लोन कंप्लीट होता है, लेकिन नॉन सीरियसनेस इतनी देखो, जुल्म इतना देखो, 15 साल तक सरकार पेंशनर्स से वो अमाउंट काटती है। द पेंशन ऑफ पेंशनर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर has been, it should be enhanced at the rate of entire country, should be enhanced 5% after every 5 years and after retirement instead of 20% at the age of 80. इसका हमारा मतलब है कि सरकार जब कोई पेंशनर 80 एज को कवर करता है उसको 20% एक्सेस पे मिलती है, लेकिन 80 एज तक तकरीबन 5% भी नहीं पहुंचते हैं। हमारा सरकार से मुतालबा है अगर आपको ये 20% देना है, 5 साल के बाद 5% देते ताकि जिंदा लोग इसको अवेयर करें। अब वो मरने के बाद कब्र पर इनाम देते हैं, ये हमें तस्लीम नहीं है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट डिस्पाइट पासिंग सीनियर सिटीजन एक्ट इन 2017, जहां की सरकार ने 2017 में सीनियर सिटीजन एक्ट लागू किया है, हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में सीनियर सिटीजन एक्ट लागू है और सीनियर सिटीजन उसका बेनिफिट लेते हैं, लेकिन यहाँ एक्ट पास होने के बाद भी जो हमने सरकार की नोटिस में बुलाया आज तक उस एक्ट पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इमीडिएट रिलीज ऑफ फ्रीज डी इंस्टॉलमेंट ऑफ कोविड पीरियड, रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ SRO 59 ऑफ 1990 इन फेवर ऑफ ऑल मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ पे एनामनीज ऑल डिपार्टमेंट्स, regularization of casual laborers. 60,000 casual laborers are desperate enough. They are fighting for the last 25 years. So many daily wagers are being dead during duty hours, but nobody takes care of their rights. And we request the government of Jammu and Kashmir that they have framed the committee regarding the regularization of the daily wagers. They should immediately speed up that, and all the regular daily wagers, casual laborers, and all the temporary employees working in all departments, including central government employees, they should be regularized. And their job security should be, orders should be issued for their job security. One more thing, हमारे पब्लिक सेक्टर में जो हमारे मुलाजिम काम कर रहे थे वो रिटायर हो गए हैं, पब्लिक सेक्टर तो डेफिसिट में है, न उनको पेंशन मिलता है, न उनको ग्रेजुएटी मिलती है, न कोई पैसा जो उनका उन्होंने वहां सीपी फंड में भी रखा वो इनको मिलता है। आपके माध्यम से हम रियासती सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि पेंशनर्स के जितने भी मामलात हैं मरकजी सतह पर, रियासती सतह पर, उन मामलात को फौरी तौर हाल किया जाए। मरकजी सतह पर ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन ने एक प्रोग्राम दिया है 24 तारीख को, हम यहाँ भी हर एक जिले में हमारा मेमोरेंडम जाएगा। हम वहां के वजीर आजम से भी इल्तिमास करते हैं कि पेंशनर्स को अगर सरकार ने 8th पे कमीशन में एक्सक्लूड किया है तो नेशनल लेवल पर टूथ एंड नेल फाइट हम दे देंगे, हम ये किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं होगा। और यहाँ जो हमने मामलात आपके माध्यम से यहाँ रियासती सरकार के नोटिस में लाए हैं, मैं आपके माध्यम से यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर साहब से इल्तिमास करना चाहता हूँ, डोंट टेस्ट द पेशेंस ऑफ द पेंशनर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एनफ इज एनफ। अगर उन्होंने आप इन मामलात को सीरियस नहीं लिया तो हमारे पास कोई, हम सीनियर सिटीजन होके, पेंशनर्स होके हम रिटायर हुए हैं,
सरकारी नौकरी से रिटायर, जदोजहद हमने सिखाया है लोगों को, जदोजहद से हम रिटायर नहीं हुए। हम अपने मामलात के लिए अभी चुस्त और दुरुस्त है, हम अपने मामलात के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तमाम डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मीन्स अख्तियार करके। इसमें और हमारे बहुत सारे और भी एम्प्लॉयज हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे आयाज हैं, हमारे कंटिजेंट पेड वर्कर्स हैं, हमारे कुक्स हैं, बाकी आज मुलाजिम हैं, उनकी बात भी मैं यहाँ करता हूँ। उनके मामलात को भी सरकार को हल करना चाहिए। मैं आपसे आपका शुक्रगुजार हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमने आपके लिए थोड़ा पानी का प्रोग्राम रखा है, पानी चाय पानी। पेंशनर किस साल पेंशन हुए, रिटायर हुए, एक मिनट, उनका जो कम्यूटेशन है वो सैंक्शन हुआ है, लेकिन उनके अकाउंट में नहीं डाला गया है। जनवरी से उनके फैमिली पेंशन से किस्त कटता है। यह ब्रेजन वायलेशन है, यह नाइंसाफी है, डकैती है, ब्रेजन डकैती। तो ये कितनी तादाद की तादाद में किसी के, देखो अनफॉर्चुनेट एक ये भी है, कोई पेंशनर रिटायर होता है वो अपनी बेटी की शादी का डेट फिक्स करता है, जियारत पर जाने का डेट फिक्स करता है, कोई मेडिकल इशू है वो हल करने की कोशिश करता है। लेकिन सरकार पेंशन होने के बाद भी हमारा पैसा हमसे, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, हमारा पैसा कहां है? वो व्हाइट पेपर उस पर निकलना चाहिए, वो कहां है पैसा? अगर हम जीपी फंड पेट पर पत्थर रख के जीपी फंड जमा करते हैं और सरकार के पास आने, वो किसने खाया, वो किस एजेंसी ने खाया, हम उसका तहकीकात चाहते हैं।